Hi guys, welcome back to Roshni's Film. So I hope you guys are doing well and are safe at your home. So for those of you guys who don't know me, hi, my name is Nidhi and I make videos related to beauty, skincare, personality development, self-development, productivity and planning related videos. So if all these things are your vibe, then don't forget to subscribe to my channel and also hit that bell notification icon so that whenever I'll post a video, you guys will get notified. And I post videos every Wednesday, Friday and Sunday. So with that being said, let's just get into the video. Cause I'm not just a pretty girl. So few days back मैंने Instagram पे story डाला था and I asked you all that should I make a half year reset video for the second half of 2021 and 100%, literally 100% of you said yes for this. So I have to make this video for you all guys. And for those of you guys who don't know what this half year reset is, so basically as we all know, we are in the mid of 2021. Like for the first half of 2021 is about to end and after that the second half of 2021 will get started. So it's high time to reflect on those goals which we set earlier in the very beginning of 2021 so that हम लोग उस goal को बहुत अच्छे से accomplish कर पाएँ, बहुत अच्छे से achieve कर पाएँ. Because sometimes what happened is in the very beginning of any year to start, we all are pumped up like I will ace this year, I will do this, I will also achieve that, and I completely understand you all guys because we should always set higher goals for ourselves. But reflecting your goal at a point of a time is equally important so that last में फिर regret ना हो कि अरे मैंने तो ये देखा ही नहीं, काश देख लेती तो ये भी कर पाती ऐसा. So I think इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत सही टाइम है to reflect on those goals and to analyze कि हम लोग actually क्या किया है. Okay, so that was the whole concept of this video. The steps which I'm going to tell you all on the method of resetting and reflecting your goals is not completely mine. मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था एंड मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा बट इसके स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. लाइक लिटरली स्टेप्स वे वेरी वेरी प्रैक्टिकल. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं भी इस पर वीडियो बनाती हूँ सो दैट all of you guys can get to know about this reflecting and resetting goal process. So with that being said, let's just directly move on to the steps. Another thing that I want to tell to you all guys is for practicing, you just need a rough sheet of a paper or a pencil, or if you are someone who use planner, so you need this planner, like whatever your journal or planner is, आपको वो चाहिए. And you also need a rough sheet of a paper just to practice all those resetting goal process. Okay, so now let's move on to our step number 1. Our very first step number 1 is you have to empty your head. So what does mean by emptying your head? So take a rough sheet of a paper and write down all the thoughts which are in your head. आप सिर्फ उस पेपर पे लिख दो और जब आप resetting goal process कर रहे होगे तो आपका दिमाग जो एकदम खाली, कोई भी थॉट नहीं आ रहा. So you just have to do a thought vomiting process on a rough sheet of a paper. मैंने ये process जो है वो अपने gratitude journal में किया था. This is my gratitude journal. क्योंकि मैं अपने सारे random thoughts लिखती हूँ तो I did there. मैंने इसमें किया था and I write 2 pages. like मैंने ये 2 pages लिखे थे. So it all depends on you. आपके दिमाग में जो भी thoughts है and there is no specific page you should write. जितना भी आपके दिमाग में जो भी चीज़ है just vomit it on the paper. Okay, that's all you have to do. Now I'm assuming कि आपने सारे अपने thoughts जो वो paper पे लिख दिए and now your head is full empty. कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चल रहा. So our step number 2 is you have to write down your goals of 2021 that you set 6 months ago. वो सारे goals आप लिखो and if you're someone who didn't set any goals but फिर भी आपके दिमाग में एक तो थॉट होगा ना दैट हाउ यू वांट योर ईयर शुड बी, तो वो सपोज आप उस पेपर पे लिख लो. नाउ आफ्टर दैट द स्टेप नंबर 3 इज जहाँ पे आपने स्टेप नंबर 2 का प्रोसेस किया, जहाँ पे आपने अपने सारे गोल्स लिखे हैं उसी के सामने आप स्टेप नंबर 3 भी परफॉर्म करो और वहाँ पे आप लिखो कि व्हाट यू एक्चुअली डिड इन पास्ट 6 months. आपने क्या किया. फर्स्ट साइड शुड बी आपके गोल्स एंड द सेकंड साइड में आप लिखो दैट आपने एक्चुअली क्या किया था पिछले 6 महीने में, आपने एक्चुअली क्या है वो सब लिखो. ठीक है. And once you are done with that, step number 4 is access why you hit some goals and why you missed others. Okay, so for that what you actually have to do is एक ऐसा कॉलम बनाओ जिसमें यहाँ पे लिखो goals I missed and why you missed that goal. Okay, then similarly आप वो भी लिखो that what the goal you achieved and why you achieved. Okay, after performing all these 4 steps, you have reflected your past 6 months, you have reflected your first half of 2021. Now it's time to reset your goals for the second half of 2021. So for step number 5, you have to write down its ideal second half of the year and also write the reason why you want it. Which means in simple words, if I say that you have to write its goal, like what are your goals of second half of 2021 and why you want them.
बिकॉज गाइस जब आपके कोई भी गोल्स या फिर कोई चीज़ें जो आप करना चाहते हो और उसका अगर आपको वाई पता हो लाइक वाई आई वांट टू डू दिस, तो वो गोल को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वुड से कि आई वांट टू स्टडी फॉर 4 hours इन अ डे, तो वाई आई वांट टू स्टडी फॉर 4 hours इन अ डे, एट द एंड ऑफ इट व्हाट आई एक्चुअली वांट फ्रॉम इट. अगर मैं 4 घंटा पढ़ रही हूँ तो मैं किस लिए पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ और क्या चाहिए मेरे को उससे. और जब ये तीनों चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे तो गोल को अचीव करना इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिकॉज दिस थिंग शुड बी क्लियर इन माई माइंड कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ. बिकॉज देयर इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज़ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन अराउंड दिस यूनिवर्स, जो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देता है आपके लिए. सो या when you're writing your goals for the second half of the 2021, always write the goals, always set goals that are in your control. Okay, for example in the very beginning of my 2021 मैंने विजन बोर्ड पे डायरेक्टली 5 के सब्सक्राइबर का पिक्चर लगा दिया था एंड वन ऑफ माई गोल वाज टू हिट 5 के सब्सक्राइबर इन दिस 2021. बट उसके फिर इवेंचुअली मेरे को रियलाइज़ हुआ that is something which is not in my control. YouTube suggests your video, it's all YouTube algorithm does. What's in your control is to post video consistently. समझ लो, तो always set goals that is in your control. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके डाल दो, नहीं, हमेशा एनालाइज करो, हमेशा प्रैक्टिकल गोल्स ही डालो, समझ लो. So our next step is you have to order your goals in terms of importance. Like maybe आपने 10 goals set करके रखे हैं for the second half of 2021. तो आपको क्या करना है कि आपको उस 10 गोल को अपने प्रायोरिटी, अपने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटाइज करना है. लाइक आई हैव डन ऑल दिस एक्सरसाइज ओवर हियर, यू कैन सी मैंने इतने सारे पेजेस में सारे एक्सरसाइज किए. तो आई एम गुड इनफ टू टेल टू यू ऑल गाइज कि हाउ टू प्रैक्टिस फॉर इट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो माई गोल्स ऑफ दिस सेकेंड हाफ ऑफ 2021 इज स्टॉप बीइंग लेजी, लर्न कोडिंग, डू सम प्रोजेक्ट्स फॉर माई प्लेसमेंट्स, लर्न इन सॉफ्ट स्किल, स्टडी एंड बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. तो मैं इतने सारे अगर मेरे गोल्स हैं तो उसको प्रायोरिटाइज भी तो करना होगा. लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स दैट आई रियली नीड टू डू. तो ऑफकोर्स फॉर मी माई फर्स्ट एंड foremost important goal is to stop being lazy. After that my goal is to learn coding because placements is really important because as I'm in third year तो placement तो चाहिए. And then उसके बाद फिर मेरे goals जो हैं फिर YouTube, फिर other freelancing things. So that's how I have प्रायोरिटाइज में गोल. इन द सेम वे आप भी वैसे कर सकते हो. इसके तो क्या होगा ना कि आप फालतू की चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे. लाइक कि अगर आप तो जैसे मेरा गोल पढ़ाई भी करना है और मेरा दूसरा गोल ये भी है कि मेरे को यूट्यूब भी बनाना है. बट अगर मैं ये चीज़ में क्लियर, मेरे दिमाग में अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई शुड डू और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है, तो क्या होगा ना मैं मे बी उन सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी. लाइक मैं अगर एक फर्स्ट हाफ का एग्जाम्पल दूँ तो मैंने ये सारे स्टेप्स प्रैक्टिस नहीं किए थे एंड ड्यू टू विच मेरे सारे गोल्स जो थे, सारे काम मैं यूट्यूब कर रही थी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई. तो ये सब क्या हो रहा था ना, ये सारी चीज़ें जो मिक्सड हो गई थी और दैट वॉज लाइक मेक मी सो कन्फ्यूज और उसके कारण क्या होता था मैं बहुत परेशान हो जाती थी. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू क्लियर अप योर माइंड. ओके, फॉर दैट रीजन यू हैव टू परफॉर्म दिस स्टेप. Now moving on to our step number 7, that is you have to know that who would you have to be to complete all these things. So for example अगर मेरे 10 गोल्स हैं, अगर मेरे गोल्स यूट्यूब पे भी इक्वली कंसिस्टेंट होना है, मेरे गोल्स स्टडी पे भी इक्वली फोकस करना है, मेरे को वर्कआउट भी करना है, मेरे को यूट्यूब पे मेरे को इंस्टाग्राम भी ग्रो करना है, तो ये सब मेरे गोल्स है. तो ये सब को अचीव करने के लिए मेरे को एक्चुअली में क्या होना पड़ेगा. सो यू रियली नीड टू क्लियर दिस थिंग्स ऑल्सो कि ये भी आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको एक्चुअली में क्या होना. और जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो अपने दिमाग में, तो यू जस्ट हैव टू राइट that what you actually have to be to complete all these things in one sentence guys. एक ही सेंटेंस में लिखो ताकि वो एकदम to the point हो और focused हो, समझ लो. For that I would give you example. तो मैंने क्या लिखा है, to complete all those goals I have to believe that I will achieve all these. Also I really need to be consistent and active in order to achieve all my goals. And another thing that I have written is I only have to sleep for 8 hours because मेरा 90% of the काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं नींद को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ and that's true. सो ये मैंने लिखा. ओके, सिमिलरली आप भी एनालाइज करो और फिर लिखो. एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल टू यू ऑल इज यू रियली हैव टू बिलीव कि हाँ मैं कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो ये सारे स्टेप्स करने का कोई फ़ायदा नहीं. बिकॉज अगेन देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक कि येस आई कैन डू दैट. एंड वंस यू थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज देयर एंड बट दैट डजंट मीन दैट यू शुडंट वर्क हार्ड. आपको उसके लिए इक्वली हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा in order to work all those law of attraction and power of manifestations. Okay, so our step number 8 is you have to create a system where you can realistically hit your goals in 6 months. Okay,
सो फॉर दैट what you should do, you can make a routine for the next 6 months या फिर आप मंथली रूटीन बना लो. ऑल्सो अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो सेट डेली टारगेट फॉर योर सेल्फ और वीकली टारगेट या फिर मंथली टारगेट भी सेट कर सकते हो. जस्ट क्रिएट अ सिस्टम कि कैसे हम एक्चुअली अचीव करें, क्योंकि आपने अपने गोल को रिफ्लेक्ट कर लिया, आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया, आपने ये भी जाना कि वाई एक्चुअली वांट टू डू दिस एंड हु आई शुड बी टू डू दिस. अब नाउ इट्स टाइम टू रीसेट, नाउ इट्स टाइम टू मेक अ रूटीन, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ सिस्टम कि आप कैसे एक्चुअली अचीव करोगे, समझ रहे हो. सो दैट यू शुड मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ. आई हैड मेक अ रूटीन फॉर माई सेल्फ on the monthly basis. Like I had made a routine for myself for July because we all are humans and time gets tough. We don't know कि आज से 2 महीने बाद क्या होने वाला है, we don't know कि परसों मेरे साथ क्या होने वाला है. सो हमेशा इसलिए मैंने बस 1 मंथ का रूटीन बनाया, क्योंकि अभी मेरे क्लासेस नहीं हो रहे. मे बी जुलाई के बाद मेरे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें बदल जाएगी, समझ लो. दैट्स व्हाई आई मेड अ रूटीन फॉर जुलाई इटसेल्फ ओनली. जुलाई और जो रेस्ट ऑफ द जून बचा है उसके लिए मैंने बस रूटीन बनाया. बट अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल टू यू ऑल इज ऑलवेज मेड अ रूटीन इन अ मैनर दैट व्हाट इफ अगर आपका दिन जो है वो ख़राब गया, बिकॉज अगेन वी आर ह्यूमन एंड हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं. some days we feel very 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 pumped up, some days we feel like not doing anything. So it is really important to make a routine. like अगर उस दिन मेरा मन नहीं किया करने को तो मैं क्या करूँगी, तो हमेशा उस मैनर में रूटीन बनाओ, समझ लो. क्योंकि अच्छे दिनों के लिए तो सब रूटीन रहते हैं, बट वट जब टाइम टफ होगा तो क्या किया जाएगा. राइट, अब मेरा एग्जाम्पल ले लो. मैंने मई में इतना सब कुछ सोच कर रखा था कि मेरे को इंटर्नशिप करना है, मेरे को यूट्यूब पे फोकस करना है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी. बट एज यू ऑल गाइस नो कि एक्चुअली क्या हुआ था मई में इन माई फैमिली, तो फिर उस टाइम उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट टाइम, दिस टाइप ऑफ टाइम ऑल्सो. समझ कि उस टाइम पे अचानक ऐसा ना फील ओ सरप्राइज. फिर उस टाइम के लिए मुझे ऐसा ना लगे कि ओ गॉड सरप्राइज मिल गया, क्या मैं बोल रही हूँ. So we should also prepare for that time also. And this brings me to the step number 9, that is how will you stick when the times get tough. Again, the question of this answer is I've already given you in the previous step. तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली रूटीन बनाना है, उसी के अकॉर्डिंगली. अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने जो रूटीन बनाया तो मैंने ये भी लिखा है कि अगर टाइम टफ होता है इन फ्यूचर, कुछ अगर वापस से टाइम मेरे को आके कोई सरप्राइज़ देता है तो मैं शॉक ना हूँ और मैं एटलीस्ट इसका 50% कर पाऊँ. तो फिर बाद में क्या होगा ना, आपको रिग्रेट नहीं फील होगा लाइक आई एक्चुअली डिड एज पर माई प्लान. तो ये भी आपका प्लान है ना कि अगर टाइम टफ होगा तो आप क्या करोगे, तो एटलीस्ट यू कैन गिव योर 50% और 30% यू कैन सेट एनीथिंग दैट सूट यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने जुलाई के लिए अपना रूटीन सेट किया एंड आई ऑल्सो रिटन ओवर हियर दैट इफ टाइम गेट टफ फॉर मी देन आई वुड डू 50% ऑफ इट. एंड अगर मैं उस टाइम इतना कर पाती हूँ तो मेरे को फिर रिग्रेट नहीं होगा बाद में, जैसे मेरे को मई के मंथ में होता है कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ये सब प्लान था, ये नहीं कर पाए. ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं होगा बिकॉज टफ टाइम में भी मैंने वर्क किया एज पर माई प्लान, समझ लो. सो ऑलवेज प्लान इन दैट वे. एंड अदर देन दैट यू शुड ऑल्सो क्रिएट अ सिस्टम दैट इज ऑफकोर्स योर रूटीन. एंड उसके अलावा भी आपको ये सेट करना हो कि सब जब टाइम टफ हो तो आप ऐसे क्या करोगे सो दैट आप वापस से अपने ट्रैक पे आ पाओ. ओके, नाउ स्टेप नंबर 10 इज, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ एंड इसका आंसर भी आपको खुद से देना होगा, दैट वाई डू यू डिजर्व दिस इम्प्रूवमेंट. आपको ये इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए लाइफ से, वाई यू वॉन्ट टू अचीव ऑल दिस थिंग्स. एनालाइज योर सेल्फ वर्थ और फिर उसके बाद आंसर दो और ये आप बस खुद से करो. Now our last step, that is step number 11, is take action right now. Because guys, आपने जितने भी गोल सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. डोंट वेट कि जुलाई हिट करेगा तब मैं स्टार्ट करूँगी. नो, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट राइट नाउ because eventually all your goals is for the year 2021 and this 10 days or 8 days also lie in the year of 2021. So start working for it right now. So that was all from my side and I really wish कि आप अपने सारे goals को achieve करो by the end of 2021 because we all deserve to be successful guys. We all deserve to be successful. And try doing that, write all your goals, make a vision board. उसके लिए vision board बनाओ फिर. and जैसे अपने स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं ना, गोल सेट करते हैं, फिर विजन बोर्ड बनाते हैं, फिर उसको प्लानर में डालते हैं, वैसे ही इस बार भी करो. You just have to bring that excitement that you had in the beginning of 2021 and that's all. उसके बाद 6 महीने वो तो देखते ही देखते चले जाएंगे and start working for it. Work hard for it guys because nothing happens overnight. Things take time and for that you really have to work hard for it.
So that's all I want to tell to you all. I hope this will help you all. And so if you really like this video, then don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you guys in my next video. And then stay tuned, stay positive, and stay safe. And all the best. Bye bye.